Do you have a relationship with Modi by any chance? I think India is going to play a very important role. Yeah. They showed the level of courage they have by banning 100 apps from China, something America wouldn't even do with TikTok. Yeah. So is there any relationship you have with Modi? I don't know him yet. Okay, but, got it. You know, I did go in. I happened to be addressing Congress the morning before he came for his joint session, so I stuck around. One of the people had me as their guest, and so I stuck around and heard his address. I've been impressed by him as a leader. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्मी होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज जो हम आपके साथ वीडियो देख लेंगे उसका टाइटल है दे नीड टू स्टेप इट अप, कैन इंडिया रिप्लेस चाइना। समझ आ गई? कैन इंडिया रिप्लेस चाइना। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। Let me ask you this on this topic. Two follow-up questions on this. You talk about, you know, when you sit down with Xi, you're going to tell Xi, here's what you do no matter what, or else, you know, or Putin, when I, you know, sit with Putin, here's what's going to... These are some heavyweight people to sit with, where you have to be firm yet confident to deliver and, you know, make sure they know that you're being serious about your, you know, whatever declaration it is you're giving to them. Who are some of the most biggest heavyweights you've ever sat with that you've had to negotiate deals with? And, you know, in the business of coming up, can you name some names, some intimidating conversations you've had to build a $9 billion company that you built? Oh, Patrick Bet-David scheduling this town hall. That was a big, heavy guy. No, I mean, look, I mean, I've sat across the table from MBS. You know, I've been to the palace downstairs in Saudi Arabia. He's a guy my age. You know, talk about too young. I don't agree with a lot of what he's doing, but say what you will, he's a young guy who's taken the reins and taken the nation in a direction with a clear vision. You know, I was sat across the table from many of the wealthiest people in the world. These aren't guys who got to where they are by playing soft, and I didn't get to where I am by playing soft either. So I'm ready for the challenge. I think that these guys, Xi Jinping, Vladimir Putin, like some of the older guys in both parties in our side of the pond, they're off the top of their game. I think their best days are behind them. You think so? I think so, absolutely. I think so. I think there's some insecurities there. What makes you say that? Well, I mean, Putin is not well. I mean, Xi Jinping is now the different guy than he was. I mean, this is a guy who had, you know, people who rise. I mean, you don't get to that position without having some kind of chip on your shoulder, right? I don't know how much, most Americans don't know a lot about his story. I was curious about it. You got to know the man you're going to face off with. So I was actually an exchange student in China. I've been watching this man's rise for a long time. His father was actually exploited by Mao Zedong. Right? He was an official in the government, but what Mao Zedong did is he unleashed the cultural revolution of young people in China that went after the old guard in the Communist Party. So his dad was like abused, and Xi Jinping was taken out with him, and there were instances where he's on a stage, had to wear an embarrassing tin hat and have kids throw things at him. I mean, this is some psychologically scarring stuff, some weird happenings in a kid's upbringing. And then now you see the guy wearing the Mao Zedong suit, right? He's trying to imitate the guy who actually humiliated and in some ways medically harmed his father, put him through a psychologically torturous youth. There's some psychologically twisted stuff going on there, but there are also some deep-seated insecurities, right? His ego is his main enemy. He was willing to put himself in a weaker position in substance to just hold on to that unprecedented third term of power. Watch what happened with Hu Jintao in that meeting where he took over that unprecedented third term. He had Hu Jintao literally, you remember this video? Literally uncomfortably lifted out of his seat. And so, yeah, do I understand the people I'm facing off with? Yes, I do. Are they weak? Yes, they are. And I think the difference with me is, look, I'm an open book. I got nothing to hide. We started this campaign. What do we do? Everybody's always about playing the game, especially wealthy people running for president. How are you going to delay and game the tax returns? We just put them out in the first few weeks in the campaign. Open book, have at it. You know, that caused some headaches for me. You know, people ask the New York Times, ask this question or that question. Fine, we answered it. You got nothing to hide. And that's the approach I'm going to take to international relations, where I'm going to be very honest with people. I'm going to abandon the lie that I think we've told in the U.S. at times, that we're somehow a moral arbiter of what happens in the world. What I'm going to say is the truth. My job as U.S. president is to advance the interests of the homeland, to actually take care of American citizens. I have a moral obligation to my fellow citizens to take care of them and their interests first. And so when I end the war in Ukraine and I'm negotiating with Putin, a deal that pulls him out of his alliance with China, which in turn weakens China from being in a position going after Taiwan, say what you will. I don't trust Putin, he doesn't trust me, but we're going to know that we each trust each other to follow our self-interest.
And we can have a clearer negotiation than if I'm saying that, oh, this is about the fight for democracy in some random nation that banned 11 opposition parties and consolidated state media into one arm when we don't care beans about somebody invading another country in Africa. No, it doesn't make sense. But if you say that, no, I'm in this to just advance American interests, then two parties can reach a deal that makes sense for both parties. And when I make a deal, Patrick, I'm in the habit of being on the winning side of that trade, and that's exactly what I'm going to do when I'm negotiating trade deals and negotiating peace settlements on behalf of the United States. Fair enough. Do you have a relationship with Modi by any chance? I think India is going to play a very important role. Yeah. They showed the level of courage they have by banning 100 apps from China, something America wouldn't even do with TikTok. Yeah. So is there any relationship you have with Modi? I don't know him yet. Okay, but, got it. You know, I did go in. I happened to be addressing Congress the morning before he came for his joint session, so I stuck around. One of the people had me as their guest, and so I stuck around and heard his address. I've been impressed by him as a leader. At the same time, I think that India is going to have to step it up a little bit. They haven't really met the full level of military commitments that I'd like to see. A little waffly on the trade relationship, and you know, understandably, the U.S. has also been a little bit less reliable than necessary, so I want to shore that up. If you want to think about a conflict situation with Taiwan, what people forget is the Indian Ocean is where the Middle Eastern oil supplies run through to get to China. And so if India is actually a reliable partner, that is a further deterrent to Xi Jinping even going after Taiwan. And I think I have probably the clearest vision of anybody in this race in either party, Patrick, of how to deter China from going after Taiwan while avoiding war over that island. And I think it's going to be the most important thing the next president does from the standpoint of foreign policy. I will say, whether you are the president, you're the candidate, or somebody else is, the fact that your background, who you are, what you've done, India is going to play a very important role. I think you're going to need to be a prominent voice and influence the next 4, 8, 12 years. Again, that's my opinion. So if you like this clip and you want to watch another one, click right here. And if you want to watch the entire podcast, click right here. छोटा सा वीडियो था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। उन्होंने स्टोरी सुनाई शी जिनपिंग के पुतिन के साथ। वो ये वैसे फर्स्ट टाइम मैंने देखे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना, आप लोगों ने रिकमेंड किया था इस वीडियो को। आप लोगों ने ये बताना कमेंट में ये हैं कौन। ये मुझे कोई ऑफिशियल लग रहा है अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है। तो लग रहा है पुलिस वाले के बैक साइड पे ना उनके वो पड़ा था मोनो। अच्छा, पता नहीं वैसे इस हवाले से। तो इनका जो रिलेशन है पुतिन के साथ भी है और शी जिनपिंग के साथ भी है, यानी कि पुतिन रशियन जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और जो शी जिनपिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो स्टोरी आप लोगों ने सुन ली शी जिनपिंग की, और उनका वो बिहेवियर जो बचपन में उनके साथ हुआ है, उनके फादर के साथ स्पेशली, जो उनके माइंड में स्कार्स बने हुए, दाग और धब्बे छूटे में इफेक्ट छोड़ जाते हैं। अगर इंसान अपने आप को पर्सनल लेवल पे ग्रूम ना करे और वैसे बाकी चीज़ों पे काम करे और अपनी सिर्फ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पे काम करे, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल पे ना करे, तो वो स्कार्स मिटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है कि शी जिनपिंग जो उनके केस में ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि जिस तरह की वो चाइना हरकतें कर रहा है, ये नहीं कि आज से ही हरकतें कर रहा है, पहले भी चाइना की जो हिस्ट्री है जब हम देखते हैं माओ ज़ेडुंग से पहले या और भी पहले, तो वहाँ कोई ऐसी जो चंगेज़ खान है वो भी इसी रीजन के ही थे, मंगोलिया और ये सारा जो है चाइना के आसपास के एरिया। तो थोड़ी सी हैं चीज़ें इस तरह की माइंडसेट के हवाले से, लेकिन जो शरारती माइंडसेट होता है या जो एक्सप्लॉयटरी माइंडसेट होता है, तो वो चीज़ें तो इनकी हिस्ट्री से हमें नज़र आती हैं। कंपैरेटिवली इस तरह आप देखें अगर इंडिया से, तो इंडिया में जो है इतना नुकसान हुआ, अंग्रेज़ों का आना, वहाँ कब्ज़ा करना, इंडिया का इतना ग्रो करना, और इस चीज़ से बेखबर रहना कि हम में दूसरी चीज़ें भी चाहिए। यानी ये चीज़ दर्शाता ये है, ये शो करता है कि इंडिया के जो लोग हैं, जो पहले के हैं, वो वॉर के टाइम वॉर को सपोर्ट करते ही नहीं थे। अगर करते होते तो उनके पास असला होता, ऐसी चीज़ें होती हैवी लेवल पे। असले से मुराद ये नहीं कि उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी, ऐसा नहीं है। बात हो रही है कि उनकी जो टेरिटरी है उसकी कंपेरेटिवली उनके पास सामान कितना था। और बाकी को देखें कि अब यूके देख लें, यूके कितना सा एरिया था, उन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर है किस तरह उन्होंने, अब तो इतना सा रह गया, पहले तो बहुत बड़ा था, किस तरह उन्होंने सारा पूरे वर्ल्ड पे आज तक की जो ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम में ब्रिटिश एम्पायर है। तो इस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जो हिस्ट्री है चाइना की, वो एक्सप्लॉयटरी हिस्ट्री रही है। और इस केस में पर्टिकुलरली जब इंडिविजुअल लेवल पे हम जब आके देखते हैं शी जिनपिंग के, जो उनके जो फादर हैं उनके साथ जो माओ ज़ेडुंग ने किया और इनके जो दाग धब्बे उस पर इनके माइंड पे रहे, तो वो तो इस हवाले से बात है। लेकिन जो बात इंडिया की है, इंडिया की तो ज़रूरत वाकई में अब हर कंट्री को, क्योंकि इंडिया का जो मेन पार्ट है जो नीचे वाला, अब बाकी चीज़ें छोड़ भी दें, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो उनकी इंपॉर्टेंस है दुनिया में, उसके अलावा भी जो इंडियन ओशन वाला एरिया है, वहाँ पे इंडिया की जो
सिग्निफिकेंस है वो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यहाँ से सामान आना जाना, चाइना का डिपेंडेंसी यहाँ पे होना इंडियन ओशन पे, यहाँ से ऑयल जाता है, यहाँ से ट्रेड होती है, जो चाइना की इकोनॉमी है वो यहाँ से रन होती है। जो आपको पता है जो दुनिया में ज़्यादातर सामान है इकोनॉमी को अपने स्टेबल रखने के लिए वो जहाज़ों से, सड़कों से नहीं जाता, वो बहरी जहाज़ों से जाता है, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो समंदर से जाते हैं। तो वही रास्ता चाइना का जा रहा है यहाँ से, ये जो इंडियन ओशन है, यानी कि इंडिया के रास्ते से होते हुए। तो ये चीज़ें तो है, तभी तो इंडिया जो चाइना है वो सी पैक वाला रास्ता और वन बेल्ट वन रोड और इस तरह की जो स्ट्रेटजीज है वो अपना रहे हैं कि किसी तरह हमारी इस रास्ते से जान छूट जाए, कि हमारी डिपेंडेंसी हमारे दुश्मनों से हट जाए। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो दुश्मनी है वो किससे ढकी छुपी है। हाँ, समझदार ज़रूर है, काम ट्रेड उनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, ये समझदारी उनकी दर्शाता है दोनों साइड की, इंडिया की भी और चाइना की भी। लेकिन उनकी दुश्मनी अपनी जगह पे, अगर ऐसा ना होता तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वन बेल्ट वन रोड, सी पैक और बाकी कंट्रीज किस वजह से वो प्रॉब्लम है उन्हें? यार इंडिया तो जो पंगे नहीं लेता इस तरह, इंडिया तो कहता है भाई हमारी लैंड पे ना आओ। उनका सबसे बड़ा मसला लैंड का है, जैसे हमारा कश्मीर पे है ना, उनका भी मसला उत्तराखंड वाली साइड पे है, और जो चिकन नेक वाली साइड पे भी वो मस्ती करते हैं, गालवान वाली साइड पे है, और पाकिस्तान ने कश्मीर वाला एक एरिया गिफ्ट कर दिया था चाइना को, लद्दाख में भी उनके मसले हैं। तो ये काफ़ी सारे मसले, पूरा जो इंडियन ऊपर बॉर्डर लगता है ना चाइना को, वहाँ कहीं ना कहीं उनके हर वक्त कोई ना कोई मसले आते रहते हैं। तिब्बत को लेके भी बड़ा इशू आता रहता है, जबकि इंडिया क्लेम नहीं करता कि तिब्बत हमारा पार्ट है, लेकिन फिर भी चाइना तो कहता है कि ये तिब्बत हमारा पार्ट है, जिसको उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ सारा, और वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है इतनी सारी। हाँ, वो एक अलग बात है कि वहाँ डेवलपमेंट करना काफ़ी मुश्किल है जिस तरह की वो टेरेन है, लेकिन फिर भी जो चाइना का साइड से मसला वो भी लैंड को लेके, और इंडिया की साइड से भी लैंड को लेके मसला है कि इंडिया ये क्लेम करता है कि हमारा ये पार्ट है, और चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है। क्योंकि चाइना की जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर है जो झपटा देने वाला या कब्जा कर देने वाला। जैसे अब ये वाला एरिया जो है ताइवान का है, ताइवान और चाइना का जो पंगा चल रहा है, वो भी ये कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। तो ये हर जगह चाइना के मसले इस तरह चल रहे हैं कि वो कहते हैं वो भी हमारा है, तो ऐसा भी हमारा है, तिब्बत भी हमारा है, और जो किसी ने गिफ्ट किया पाकिस्तान ने कश्मीर वाला पार्ट, वो भी हमारा, चलो वो पाकिस्तान ने कर दिया ना। लेकिन बाकी कितनी सारी ऐसी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं जहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है। ये इनका असल में मसला है। इंडिया ये नहीं कहता कि आप ताइवान पे करें ना करें, वो तो एक अलग से बिल्कुल मसला ना, जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इनकी आपस में इस तरह लड़ाइयाँ होती हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा, तूने भी देखा होगा, अक्सर जो इनकी आर्मी भी आमने सामने हो जाती है, और तेरी पैंट जो तेरी ऐसी थी पंजाबी सिख जो है सिख रेजिमेंट यहाँ से लगी होती है, वो इन्हें तो मारो इट मारो, इन्हें दी पैंट दी इन्हें दी उन्हें दी, इस तरह की गालियाँ दे रहे होते हैं बॉर्डर पे। तो ये इनका मेन मसला है। लेकिन जो जिस लिहाज से वीडियो था जिस टॉपिक के ऊपर कि क्या चाइना को जो है वो क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, टाइम ज़रूर लग सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं ना छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स ऑफ इंडिया एंड बेबी स्टेप्स ऑफ चाइना, तो बहुत साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल एक बगैर मसले के जो है ना जो स्टेप्स हैं, इन फ्यूचर जो मसले नहीं क्रिएट कर सकते वो स्टेप्स इंडिया के हैं। बिल्कुल। अब चाइना के देखिए, सी पैक पाकिस्तान ने पैसा लगाया, प्रोजेक्ट रुक गया, गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है, ये तो खाली एक सी पैक की बात है। जो बाकी इनके जो रोड का प्रोजेक्ट है पूरा ये करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो तो अलग से मसले चल रहे हैं। श्रीलंका वाला जो हरमन टोटा पोर्ट वाला सीन था वो भी आपके सामने, किस तरह उन्होंने सारा उनको कंट्रोल किया, फिर इंडिया ने वहाँ से हेल्प की, 3-4 बिलियन डॉलर की, शायद इससे ज़्यादा ही की थी, 5 बिलियन से ऊपर ही की थी। तो ये चीज़ें वहाँ से भी नहीं, इंडिया ने श्रीलंका की थी। अच्छा। क्योंकि श्रीलंका को अपने लोग भी उनके करप्ट थे, और फिर बाहर से भी अंदर के लोगों ने अलाउ किया चाइना को अंदर आने के लिए, और वहाँ उन्होंने हरमन टोटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने ये जैसे हमारा गवादर है, उन्होंने वहाँ पे भी इस तरह पंजे गाड़े हुए थे, श्रीलंका में भी हरमन टोटा पोर्ट में। तो वहाँ बड़ा मसला बन गया था, तो फिर उनके लोगों को भगा दिया। श्रीलंका के जो लोग थे राजापक्षा के, राजापक्षा एक पूरा एक ग्रुप था, एक पूरी फैमिली थी, जैसे यहाँ पे हम शरीफ ख़ानदान को कहते हैं ना, तो वहाँ सिविल पॉलिटिशियंस में राजापक्षा श्रीलंका में, तो उनके जो हाउस थे ना, जो PM हाउस होते हैं या जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ घुस गई थी अब पूरी अंदर चढ़ दौड़ी थी सारी। और अब उनके मामला बेहतर हैं, उनका वो चढ़ दौड़ने का एक समझ में आता है, एक पता चलता है ये वो सारा कि अब जुल्म की जब इंतहा हो जाती है। लेकिन वो तभी होता है ना जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि जब आपका रूल ऑफ लॉ आपकी सोसाइटी को कंट्रोल ना कर पाए। तो ये वीकनेस ही शो कर रहा है ना कंट्री की, ये बता रहा है कि कंट्री कहाँ पे खड़ा हुआ है, कि आपका रूल ऑफ लॉ चल नहीं पा रहा, आवाम को अंदर घुसना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं तो ख़राब चीज़ है, इसको कोई जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकता। ये तो कितनी सारी चीज़ों को एक्सपोज करती है। हम साइड पे जा रहे हैं, लेकिन मेन बात चाइना और इंडिया के हवाले से थी। बात असल में ये है कि बहुत आगे की प्रेडिक्शन जो हम देखते हैं वो करना बहुत आसान है जब हम अभी के करंट स्टेप्स देख लेते हैं
कि एक कंट्री वो किस तरह के ले रहा है, दूसरा कंट्री कैसे ले रहा है। चाइना पंगों वाले स्टेप्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा झोंक रहा है। इंडिया बड़े ही एहतियात से सीधे रास्ते से, स्ट्रेट पाथ, सीधा जाना सीधा वापस आना, इधर उधर टाइम ज़ाया ना करना। एक एग्जांपल के तौर पे एनालॉजी से समझा रहा हूँ, तो इंडिया उस तरह काम करता है, डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट आता है और एग्जैक्ट जाके इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ पे करता है, और इस माइंडसेट से करता है कि पैसा हमेशा लिमिटेड है। आपको याद हो, हमने आपके साथ एक वीडियो देखा था, तो उनसे एक सवाल किया गया था इंडियन ऑफिशियल से कि आप कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं जबकि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है, यानी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो एक ही जवाब था, उन्होंने कहा कि हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास पैसा लिमिटेड है, जबकि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी इंडिया की ज़बरदस्त हो चुकी है। 3.5 के आसपास ट्रिलियन डॉलर है, और ये आने वाले टाइम में बड़ी स्पीड से 10 ट्रिलियन भी बड़ी इजीली पहुंच जाएगी, क्योंकि अब जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अब वो कीड़े वाली ग्रोथ से हट के अब उड़ने वाला टाइम आ गया। तो अब 10 बिलियन दूर नहीं है, 10 ट्रिलियन डॉलर दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट ये है कि हमारे पास पैसा लिमिटेड है। ये इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को शो करता है कि ये पैसे को लेके सीरियस है, अपने एक एक रुपए को लेके, कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमारा पैसा सही जगह लगना चाहिए ताकि हमें उसके सही आउटकम आए। और यही डिसीजन उनका बताता है कि बाकी दुनिया के ग्रोथ रेट देख लें आप और इंडिया का ग्रोथ रेट देख लें। चाइना इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, चाइना से भी ज़्यादा इंडिया का ग्रोथ रेट है। ये किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि बेबी स्टेप्स और ये जो पैसे की जो एक गेम है उसको समझना। ये नहीं कि 26 बिलियन पाकिस्तान में झोंक देना, कुछ वहाँ अफ्रीका में डाल देना, कुछ ऐसे कर देना। प्रॉपर सोच के समझ के उस चीज़ को मतलब एनालाइज करके कि कहाँ पे लगना चाहिए, कि यहाँ पे फ़ायदा होगा नहीं होगा, कल को प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। अपनी तरफ से तो इंसान करता ही है, कोई भी हो, वो मुल्क के हो या उसके अपने आप पे हो, जैसे भी है। लेकिन यह है कि अभी तक जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है, जिस जगह पे लगाया है, वो बड़ा सोच समझ के और बड़ी समझदारी के साथ, और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी बताई है कि उन्होंने इस तरह पैसे को समझा कि जैसे है ही नहीं हमारे पास, मतलब मीन टू से लिमिटेड पैसा है, ये नहीं समझा कि वादू पैसा है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए। हमारा ये ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।